Ladies and gentlemen, I'm here to introduce the speaker of today's evening, Siddhansh Agarwal. Siddhansh is a second-year student at NMIMS Mumbai. He's pursuing his BA Honours in Liberal Arts and likes to spend his free time with content culture. He completed his schooling from BPS Prayagraj in 2020. And he's the son of our very own Rotarian Siddharth Agarwal. Siddhansh has been creating content consistently since last 2 years. He's been working with the biggest creator and brands in a professional capacity and has built multiple sources of income owing to his skill in video production, writing, SEOs, etc. Now I would like to, I have a little introduction about today's topic also. In publishing, arts, and communication, content is the information and experiences that are directed towards an end user or the audience. Content is something that is to be expressed through some medium as speech, writing, or any of the various arts. A content creator is someone who creates appealing and inspiring content for the viewer. It can be educational or simply be catchy enough to entertain and grab attention of the visitor or passerby. Nowadays, social media is used for networking and is a platform where millions of users are online 24/7. And content creator creates captivating content that would interest these online users. Our speaker, Siddhansh, will guide us how to explore this career. All over to Siddhansh now. So thank you so much, Swati Aunty, for that introduction. I'm flattered. Other than that, I'm really grateful to be here today, just because of the simple reason that a lot of you people here have been working in this community for more years than I have been alive for. So it makes me really happy that I could speak to you in a capacity where I'm telling you something, which is like I don't know, I don't have words to say it, but this is very humbling for me. Thank you so much for inviting me over. Second of all, since this group of people that I'm addressing today and we're talking today comprises also of people who are, again, as I said, people who are my mom's and dad's age. I think this is going to be very new and very fresh for everyone, because people my age are very kind of, they know what content creation is, and like for what them, they'll get to know how they can earn money. But for you guys are in for the actual treat. You guys are going to explore a new set of careers altogether. You're going to know how people are making money in the new digital age. So let's go. This is going to be fun. And I need all of you to stay interactive, because this is going to be fun if you stay interactive as well. Also, just a request, whoever is entering, please enter with your mics muted. This is going to be beneficial for the both of us, all of us. So here I go. So before I tell you anything about content creation, I would like to know from you guys, what do you think content is? What comes to your mind when you hear the word content first? क्या समझ में आता है content से? Anyone? Please raise your hands if you want. Hi Siddhansh, this is Arya. Hi Arya. Yeah, actually I've been following you on Insta since a long time, and for me content is whatever you are making. Content is whatever is available on YouTube, whatever is available on Twitter, something that adds value to our daily lives. That is content for me. Right. Okay. That's a good try, but I'll try and make it better for you. So let me tell you this. When we think about media, right? When we think about mass media, हमारे दिमाग में क्या आता है? TV, movies, news, ये सब चीजें. Now,
all of this is out of a common person's reach. मैं और आप जाके कल एक पिक्चर नहीं बना सकते, मैं और आप जाके कल एक न्यूज शो नहीं बना सकते, मैं और आप जाके कल को एक शो नहीं बना सकते, बट कंटेंट हर कोई बना सकता है. Who's unmuted? Who's unmuted? Please mute yourself, whoever it is. हाँ, thank you. So कंटेंट हम सब बना सकते हैं. कंटेंट इज मास मीडिया डेमोक्रेटाइज्ड. जब हम सबके हाथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऐसा टूल देते हैं जिससे वो अपने जिससे वो किसी भी तरह का कंटेंट नहीं. अगेन लेट मी टेल यू, कंटेंट इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब वीडियो. कंटेंट इज अ यूट्यूब वीडियो, अ ब्लॉग पोस्ट, अ पॉडकास्ट एपिसोड, बेसिकली ऑल, मतलब राइटिंग हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और हर तरह का मेटा कंटेंट भी होता है. इट्स ऑल, और हर तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन फॉर्मलाइज्ड और पैकेज्ड इज कंटेंट. एक किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को जब हम एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और फिर हम उसको दुनिया के आगे रख देते हैं तो वो कंटेंट बन जाता है. अभी आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू live. This meeting is being recorded. When this meeting ends, I'm going to have a video of this meeting. That video can be used as content. उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकल के और कंटेंट बन सकता है. उसका एक ट्विटर थ्रेड बन सकता है जिसमें कोई इंसान एक सारे इसके पॉइंट्स को समराइज करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट लिखता है, वो भी कंटेंट है. सो डू यू सी कितना वास्ट एक एस्पेक्ट है टू दिस वर्ल्ड. कंटेंट, इतना कुछ है कंटेंट के आसपास. आपकी दुनिया कंटेंट पे चल रही है आजकल. आप अपने अपनी फेसबुक फीड से लेके अपने बिलबोर्ड पे ऐड तक सारा कंटेंट है, सब कुछ. तो दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द स्केल एट विच वी आर वर्किंग. और अगर इस इंडस्ट्री को हमने अब नहीं देखा ना तो हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज भी इन द पास्ट डेकेड इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा आया है. ब्रांड्स हैव बीन पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, क्रिएटर्स हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. आई नो पीपल जिन्होंने फोन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अपने घर के एक कोने में, और आज वो पूरे प्रोडक्शन हाउसेस, पूरी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जस्ट बिकॉज दे पुट देमसेल्व्स आउट ऑन द इंटरनेट कंसिस्टेंटली, सब कुछ. तो इतनी बड़ी चीज कंटेंट, अगर हम उसके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, स्पेशली इफ अ लॉट ऑफ यू गाइस आर पेरेंट्स आउट हियर, अगर आपके बच्चे अपना टाइम इस फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हैं, यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं, तो I'm not saying that you should not put a hold on them. I'm not saying that you should not regulate them, but you should also know that जो कि वो आज कर रहे हैं वो चीज आगे जाके उनके लिए फ्यूचर हो सकती है. मेरे पेरेंट्स, मतलब my parents would know 2018-19 when I was in my 11th and 12th, I used to listen to a lot of podcasts. मैं दिन भर सिर्फ YouTube देखता रहता था. And obviously as a parent उनके लिए ये चीज नहीं थी अच्छी. They didn't want me to do that. But thankfully I did find my calling here only. I did find what I like doing here only. और मुझे तभी पता चला जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, when I saw this opportunity in front of me. तो जो जमाना था कि अपने बच्चों को फोन नहीं देंगे जब तक उनका कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा, अपने बच्चों को इंस्टाग्राम से दूर रखेंगे, फेसबुक अकाउंट बनाने नहीं देंगे, वो चीज बहुत दूर हो चुकी है. आजकल वो चीज करना, and I'm going to make a very controversial statement, but आजकल वो चीज करना is equivalent to उनको स्कूल ना भेजना. Although on a chota magnitude, but yes. Saurabh Agarwal ji, please, you're unmuted. Mute yourself. So yeah, that is the scale of which we guys are working, right? So that's how why you should understand what's the thing. अब हमें समझ में आ गया है कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है. अब हमें समझ में आ गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अब हमें पता चल गया है कि ऐसा क्यों है कि हमें इसकी तरफ देखना चाहिए. बट एक्चुअली क्यों मैं सब पे आज चर्चा करने वाले हैं. मैं बताने वाला हूँ आपको, और शायद आप भी मुझसे पूछने वाले हैं, और मैं कुछ सीख सकूं, आप कुछ सीख सकें. दैट्स व्हाई वी आर हियर. एंड सो वी विल बी ब्रेकिंग डाउन 5 मेजर मिथ्स, 5 झूठ जो कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में फैलाए जाते हैं. एंड दिस इज स्पेशली रेलेवेंट फॉर पीपल, अगेन माय पेरेंट्स एज, बिकॉज you guys get the lowest resolution version of information through WhatsApp. जिसके इंसान को जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, वो उसके बारे में 4 फॉरवर्डेड मैसेज चला के आपको भेज देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सही बोल रहा है. इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आपको कोई ढंग से बताने वाला नहीं है. That's why I am here. That's why thank you for giving me this opportunity to tell you guys from the inside how it is. Now, when we go over the myths, I'm going to ask you we're going to go over the myths. I'm going to ask you how many of you believe this. So first of all,
Do you guys think that you need to be viral to be successful? हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो वायरल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सबने लास्ट ईयर देखा था वो कौन सा रसोड़े में कौन था, वो न्यूज तक में आया था. तो आपको क्या लगता है, क्या एक वही तरीका है जिससे लोग पॉपुलर होते हैं और पैसे कमाते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने हाथ खड़े कर दीजिए और बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी सच्चाई. डू यू थिंक दैट वायरलिटी is the only way you can be successful? Do any of you think that? Yes, I'm getting answers in the chat box. Swati ji, yes, आपका भी हाथ खड़ा हो गया. No, okay. There are people my age, so they know what it is, but okay. Right. Okay. So let me really break your bubble. ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं see. आपको क्या, डू यू थिंक कि जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं क्या वही सिर्फ पैसे कमा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं. मैं बताता हूँ क्यों. इंटरनेट के साथ खास बात यह है कि यहाँ पे लिमिटेड स्पेस नहीं है. सिर्फ आपकी फोन स्क्रीन और आपकी टीवी स्क्रीन नहीं है जहां पे आप लोगों को देख सकते हैं. देयर आर करोड़ ऑफ स्क्रीन्स एंड प्लेसेस जहां पे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं. There are multiple places, there are multiple screens on which people are watching. So the people you see on the internet are actually the people you see getting viral are actually an anomaly. They are actually an anomaly. उनको वहां पे होना नहीं चाहिए था जहां पे वो हैं. क्योंकि the very nature of internet, the very nature of social media works like जो आपको पसंद है हम वो आपको दिखाएंगे. उनके algorithms ऐसे काम करते हैं because उनका the reason that they work like this is because they want you to be on their app as much as time as possible. उनको जितना टाइम आप अपने आप पे स्पेंड करवा देंगे वो आपको, कि इंस्टाग्राम कहेगा यार ऐसे तरीके से लेट्स मेक आवर ऐप अ वे जहां पे लोग इस पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करें. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर फिर वो एड्स दिखाते हैं और उस एड से इंस्टाग्राम पैसे कमाता है. तो नेचुरली प्रोग्रेशन ये होता है कि आपको उनकी ऐप पे ज्यादा टाइम रखने के लिए इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपको पसंद है. So that's why you can curate, you can decide what is on your social media feeds. But now the people you see on your TV screens unprecedentedly, अगर आपको यशराज मुखाटे दिख रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जबकि आप म्यूजिक सुनते भी नहीं है, जबकि आप मीम कल्चर से, जबकि आप रसोड़े वाले मीम से एसोसिएटेड भी नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वायरल हो गया. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो is literally blown out of proportion. उसको होना नहीं चाहिए वहां पे. वो एक अनोमली है एंड अनोमली से दुनिया नहीं चलती. एंड इसका एक फ्लिप साइड भी है जो कि काफी डार्क है, मैं आपको बताऊं तो. नाउ देयर आर पीपल हु गेट वायरल एंड देन स्टे वायरल, या फिर दे बिकम सक्सेसफुल. एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट दे हैव अ मसल, दैट दे हैव अ कंसिस्टेंट हैबिट, दैट दे हैव what it takes to handle an audience that big. कोई बंदा जब स्टार्ट करता है या जब कर रहा होता है, a lot of people, no one is ready to handle millions of people at once. But अगर आप कोई काम 3 साल, 3.5 साल, 4 साल से कर रहे हो और तब आपको एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न आता है, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है. अगर लेट्स जस्ट से आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, ठीक है, आप काफी क्वालिफाइड हो, आपको सब आता है, बट आपका बॉस आपसे सिर्फ छोटे छोटे काम ही करवाता है. वो आपसे नॉर्मल फाइल्स हैंडल करवाएगा और कुछ भी, मतलब ज्यादा काम नहीं करवाएगा. बहुत एक ऐसा रहेगा कि यार ठीक है, हाँ मैं तो कर लेता हूँ आराम से. लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जिस दिन बॉस आपके पास आके आपको ज्यादा काम देगा ना, आप उस दिन वो काम कर लोगे, आप उस दिन वो काम कर लोगे, आप उस दिन वो पैसे भी कमा लोगे. Contrary to that, let's just say किसी को काम ज्यादा नहीं आता, वो आया, उसको पहले दूसरे दिन बॉस ने कहा ये लो तुम्हें 50 लाख का प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ, क्या वो कर पाएगा? अगर उसको आता नहीं है तो वो कर नहीं पाएगा, या फिर उसको एक बार उससे तुक्का लग जाएगा, दूसरी बार नहीं लगेगा. That is what virality looks like. We need to understand कि जब वायरलिटी आती है ना, हमें तो सिर्फ सक्सेस दिखती है, हमें तो सिर्फ न्यूज पे दिखता है कि यार ये बंदा आगे आ गया, चलो इसको, बंदे को रिकॉग्निशन मिल गई, इस बंदे को पैसे मिल गए, ब्रांड्स मिल गए. लेकिन क्या वो चीज सस्टेनेबल है लोगों के लिए?
क्या इंसान के पास इतना इतना I'm sorry for the crude word, but इतना गूदा है लोगों में कि वो उसको संभाल सके. I'll give you an example. हम सबने again यशराज मुखाटे हमने सुना है. यशराज मुखाटे is very popular today. He is making a lot of money, but that's not because of the one video that he did जो कि वायरल हो गई. That was because of the hundreds of videos that he did before. अगर आप उसके Instagram और YouTube पे जाएंगे, वो बहुत टाइम से ये चीज कर रहा है, सालों से. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. जब ऑडियंस आई उसको पता था कैसे कैपिटलाइज करना है, क्योंकि जब ऑडियंस आती है there's a lot of things that you have to do. पहले तुम ऑडियंस लाने का एक तरीका बनाते हो, फिर वो ऑडियंस को रहने का भी एक तरीका होता है, वरना लोग अनफॉलो करके चले जाते हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अनफॉलो रेट हाई है, मैंने आज ही कहीं पढ़ा था. बट देर आर इसके एक फ्लिप साइड भी है. हम सबने वो वीडियो देखी है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. उस बच्चे का क्या हुआ? वो वायरल हो गया, उसकी वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, वो एक म्यूजिक वीडियो में भी आ गया. अब कहाँ है? अब वो इंस्टाग्राम पे सस्ते ब्रांड प्रमोशन कर, अब वो इंस्टाग्राम पे गंदे गानों पे नाच रहा है. दैट इज नॉट अ ब्रांड. दैट इज, जितना पैसा वो कमा सकता था, अगर उसको वो एक्चुअली कोई स्किल आती, वो नहीं कमा रहा है. एंड आने वाले दिनों में इफ इट डज नॉट होल्ड अप टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, ही विल फेड अवे. सोशल मीडिया का नेचर ऐसा ही है. द थिंग विद सोशल मीडिया इज दैट if you want to be successful on social media, you have to do more than content. You have to rely on something more than just the algorithm. उस पे हम आएंगे आगे. बट जिसको उसकी नॉलेज होती है वो इंसान इवेंचुअली ये चीज कर लेता है. बट जिसको नहीं होती ना, उसको मैं 10 मिलियन फॉलोअर्स एक साथ लाके भी दे दूं तो उसको कुछ नहीं होगा. उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा यार, उसको आता ही नहीं है कुछ. हाउ विल ही बी एबल टू डू इट? नाउ let me give you an example of how people have been successful without even going viral. See, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा. There is a YouTuber called Vedant Rusty. He's a creator and he's been a friend as well. हमारी around 2 साल से बात होती रहती है. And वो बंदा आज तक कभी वायरल नहीं किया in the sense that you want. Like उसने I'm sure आपने उसको कभी अपनी टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा. I'm sure आपने कभी उसको अपने सोशल मीडिया फीड पे नहीं देखा. बहुत कम लोगों ने देखा होगा, अगर देखा होगा तो. बट आज वो बंदा एक बहुत ही अच्छा साइजेबल बिजनेस चला रहा है जस्ट ऑन कंटेंट. द रीजन कि उसको नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस है. ही हैज डन दिस फॉर मोर देन 4-5 years एट दिस पॉइंट इन टाइम. उसको कंटेंट क्रिएशन से लेके बिजनेस तक की हर चीज की नॉलेज है जो कि इस फील्ड में आती है. मेरी उससे पर्सनली बात होती थी, मेरी उस दिन कॉल पे बात होती थी. एंड ही टोल्ड मी दैट जो उसकी आजकल ही मेक्स मोर मनी इन वन डील दैन ही डिड इन हिज एंटायर ईयर ऑन हिज फर्स्ट जॉब. और वो फर्स्ट जॉब थी अराउंड 30, 40, 50,000 की सैलरी पे. तो यू कैन मेक दैट आउट. 6 लाख रुपए से ज्यादा एक डील का. Why? Just because he has a genuine audience. That's because he has a lot of knowledge, he has a lot of integrity, he has a lot of consistency to put content out. He has a lot of ways to monetize his content, जिस पे हम बात करने वाले हैं आज. That is the reason. Now he is, और एक और बात, ये जो सारे 3, 4, 5 साल उसने लगाए हैं, ये उसने सब कुछ छोड़ के सिर्फ कंटेंट में नहीं लगाए. in all these 3, 4, 5 years उस बंदे ने अपनी DU से बैचलर्स की डिग्री करी, 2 साल जॉब करी, और लास्ट ईयर ही बंदा लंदन से मास्टर्स करके वापस आया. और ये सारे सालों में बंदे ने ये सारा काम किया है साथ में. तो अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज में सक्सेसफुल होने के लिए अपना सारी जान मेहनत लगानी पड़ेगी, सारी जान लगानी पड़ेगी, सारा टाइम लगाना पड़ेगा, सारी जान तो लगानी पड़ेगी, मेहनत तो लगानी पड़ेगी, बट सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. मैं भी आज जो भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट along with everything else that I do. I'm doing it along with my studies, and that's what I'm going to come at. I'm going to bring the example closer to home. I'm going to talk about myself.
I started creating content when I was almost 18, like before the lockdown hit. Like while the lockdown hit, I started making content because I was free. And for almost an year, I didn't make any like that good of a money, but I still did it. मेरे YouTube चैनल से मुझे आज भी पैसे नहीं आते हैं, मेरे Instagram से मुझे आज भी पैसे नहीं आते हैं. मैंने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए इधर उधर, मैंने स्किल्स सीखे. बिकॉज द थिंग विद कंटेंट इज, ये कंटेंट क्रिएशन is not just limited to you being a creator. It also encompasses a lot of skills. एक YouTube वीडियो पे अगर हम एक YouTube वीडियो को लेते हैं, तो उस YouTube वीडियो पे सिर्फ जो उस वीडियो को बना रहा है ना, जो उस वीडियो को अपलोड कर रहा है, सिर्फ वो बंदा पैसे नहीं कमा रहा. अगर वो एक बड़े चैनल की YouTube वीडियो है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उस 8 से 10 मिनट की वीडियो को रिसर्च किसी और ने किया है, उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, उस स्क्रिप्ट को बोला किसी और ने है, वीडियो शूट किसी और ने करी है, उसको एडिट किसी तीसरे बंदे ने किया है, उसका थंबनेल किसी और ने डिजाइन किया है. यूट्यूब पे एक चीज होती है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और टैग्स, जो कि आपकी वीडियो को रैंक कराने में, अगर मान लीजिए मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी इन 2021, तो डिस्क्रिप्शन और टैग्स अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी वीडियो सबसे ऊपर आ सकती है, अगर आपने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है. तो वो करने वाला बंदा अलग है, और ये सब अच्छे पैसे बनाते हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ अब ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन का काम नहीं रह गया. आप सिंगल पर्सन कर सकते हो, बट बहुत लोग कर सकते हैं साथ में और सब पैसे कमाएंगे. हम इस पे भी और आगे बात करेंगे. तो फर्स्ट तो अब तो हम और अगेन इस पे, एज आई टोल्ड यू, मैं अपना एग्जांपल पे आ रहा था, राइट? आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट. मैं अपना एग्जांपल पे आ रहा था. मैंने एक साल तक, मैं आज भी कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म्स कुछ पे करते हैं. I have been working with other creators. I have been working with people who need my skills because I can help them make more money through my skills. तो वो मुझे पैसे देने को तैयार है. सिंपल सा फंडा है यार. अगर मेरी कुछ मदद से उनके ज्यादा पैसे बन रहे हैं तो वो मुझे पैसे देंगे. यहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछता है, वो सबसे आपका काम पूछते हैं. उन्होंने मुझसे मेरा काम पूछा, मैंने कहा ये लो काम. उन्होंने मैं अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है करके दिखाओ हमारे लिए, ये काम करके दिखाओ. मैंने कहा अच्छा करके दिखाता हूँ. वो काम मैंने अच्छा किया, तो एक इंटरव्यू लेंगे, तो लाइक अच्छा कौन है क्या है, थोड़ा बहुत सवाल पूछो आप, एंड देन दे डिड टेक मी. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको काम करने, और सी स्टार्टिंग में ना देयर इज नो एंट्री बैरियर टू दिस. ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप स्टार्ट कर सकते हो. बट हाँ, देयर इज बैरियर टू इम्प्रूव, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. और जैसे जैसे इम्प्रूव करते रहोगे आपके पैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहेंगे. When I first joined an internship, मेरी सैलरी कुछ 2,000 रुपए महीने की थी. आज वो सैलरी 20,000 की. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद इन, लेट मी टेल यू, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने के अंदर I made my salary 10-fold just because I improved. ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और इसके ऊपर मुझे पता है मेरी बहुत आगे सैलरी जा सकती है. And this is not my only stream of income. I have other streams too. And all of these exist not because I have numbers, not because people are watching me, but because I have skill, and important people and people who matter noticed it. People who have money, who I can help them make more money. ऐसा ही होता है ना, these guys notice. अगर आप ऐसा कहोगे कि सिर्फ वायरल क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, तो इट्स लाइक यू सेइंग कि सिर्फ जो स्टार्टअप्स जो कि फंडिंग उठाते हैं और न्यूज में आ जाते हैं वही पैसे कमा रहे हैं. जबकि ऐसा नहीं है. बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स पैसे बना रहे हैं, वो न्यूज में नहीं आते, बस वो आपकी स्क्रीन के सामने नहीं आते. बहुत लोग पैसे बनाते हैं. सेम इज विद क्रिएटर्स. तो आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes. अब भी किसी को डाउट है? No. Can we come to the second point, or do I have anything else that I need to clarify? Great. I hope you guys are enjoying it. कुछ feedback हो? I'm like कुछ धीमे तेज तो नहीं बोल रहा मैं? The pace is fine. No, actually, you're going with the flow. It's
just awesome. So Thank you. just Thank you. continue. Great, 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 great. I'm so happy that you guys are liking it. So let's come to myth number 2. This is something that I have been told a lot, that people who create content and people who see other YouTubers making money are told a lot. It's that it's not for everyone. सब नहीं कर सकते ये. आप क्या आप में से सबको लगता है कि ये चीज हर कोई नहीं कर सकता? Okay, let me tell. So हमें क्या लगता है ना, people like us या people जो कि again मुझसे थोड़े बड़े हैं, मेरे mom dad की age के हैं. See, the thing is that I'm not calling you guys out. I'm not villainizing you. This is just because I primarily designed this lecture for you guys so that you could know better. And I'm grateful that people my age have also joined. आपके लिए भी काफी कुछ है, आप सुनते रहो. But for people who are closer to Pankaj uncle's age or Swati auntie's age, what they'll say is that बेटा ये सब नहीं कर सकता, ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई कैमरे के आगे आके वीडियो नहीं बना सकता, हर कोई एक पॉडकास्ट नहीं बना सकता, हर कोई लोगों से बात नहीं कर सकता, हर कोई इंटरनेट के लिए नहीं बना है. मैं कहता हूँ अच्छा, see, this is only partially true. हम कहते हैं कि हम ये सब के लिए नहीं होता और फिर हम ट्राई भी नहीं करते. ऑब्वियसली यार, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये. लेकिन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इतना डाइवर्स है कि बहुत लोग कर सकते हैं इसको. बिकॉज अगेन एज आई सेड, इट्स एक्सप्रेशन फॉर्मलाइज्ड. हम सब में से किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को बोलना पसंद है, किसी को आर्ट करना पसंद है, किसी को चेस खेलना पसंद है. आजकल हर चीज पे कंटेंट बन रहा है, लिटरली हर चीज पे. इंसान को खाना बनाता है, इंसान को गंदा खाना बनाना आता है, लोग उस पे कंटेंट बना रहे हैं. देयर आर पीपल हु आर जस्ट डीप फ्राइंग कुछ भी. ये बॉटल उठा के उसको बेसन में डाल के डीप फ्राई कर देंगे, 1 मिलियन लाइक्स. दैट इज व्हाट कंटेंट क्रिएशन हैज कम टू. दैट इज व्हाट कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम नाउ. अगर आपको कुछ भी करना आता है, इफ देयर इज एनी वे दैट यू कैन अट्रैक्ट एन ऑडियंस, तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए है. अजीब से अजीब चीज भी अगर आप करते होते हो तो आप उस पर कंटेंट बना सकते हो. इतना डाइवर्स है कंटेंट. बट स्टिल देयर आर पीपल हु लेट्स जस्ट से आर नॉट कंफर्टेबल विद बीइंग ऑन द इंटरनेट. बट मेरा सवाल ये है, ट्राई भी नहीं करना है क्या? और क्यों नहीं करना है ट्राई? See, the thing is, what we don't realize is that something like content creation, इसकी opportunity cost. If you people who from economics background, they know what opportunity cost means. Opportunity cost का मतलब है कि अगर इस चीज को मैं करने जाऊं तो इसमें मुझे कितनी कॉस्ट लेनी पड़ेगी सिर्फ ये चीज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ बोलने के लिए है कि यार सिद्धांश, बिफोर यू बिगिन टॉकिंग, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा अपनी टॉक को आइडिएट करने में, रिसर्च करने में, अपनी टॉक को लिखने में. मैंने वैसे बाय द वे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ रिसर्च किया है. अपनी लाइट सेटअप करने में, अपना कैमरा सेटअप करने में. ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू टेक टाइम. सो दैट टाइमिंग और द मनी आई स्पेंट ऑन दीज लाइट्स आर माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए मुझे क्या क्या कॉस्ट लेनी पड़ी. That's what an opportunity cost essentially is. What we don't realize is that content creation में there is no opportunity. There is the opportunity cost is least. अपने खाली टाइम में बैठ के अगर आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर सकते हो, फेसबुक पे स्क्रॉल कर सकते हो, तो आप कंटेंट बनाने की कोशिश भी कर सकते हो. आप उस पे जाके कुछ बोलने की, कुछ लिखने की कोशिश भी कर सकते हो. अगेन, आपको सिर्फ जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मेरी तरह यहाँ पे बोल रहे हो वीडियो पे आके. यू कैन ऑल्सो राइट अ ब्लॉग, यू कैन राइट एन इंस्टाग्राम पोस्ट. सिर्फ लिखने के बहुत पैसे मिलते हैं आजकल. अगर मैं आपको बताऊं, मुझे दिन का एक कैप्शन, इंस्टाग्राम का कैप्शन इज जनरली 2 लाइन का. वो एक दिन का मुझे लिखने के महीने के 4,000 रुपए. और उसमें मुझे कुछ रिसर्च भी नहीं करनी होती, मुझे उस वीडियो देखनी होती है,
एंड उसके नीचे उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो लिखनी होती। तो अगर ये आता है ना ब्रो, तो बहुत पैसे बनाने को है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एक्सप्लोर, यू हैव टू सी अगेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं यार, क्या क्या चला जाएगा। लेट्स जैसे कल को मैंने सारा कंटेंट बंद कर दिया, क्या चला गया? मेरे कॉलेज ग्रेड्स डाउन नहीं है, मैंने इतने सारे स्किल्स सीख लिए, मैंने इतना कुछ जान लिया, मैंने बोलना सीख लिया, मैंने लोगों से बात करना सीख लिया, मैंने एक कैमरे को एक सेटअप पे, मुझे एक रिसर्च कैसे करते हैं, मैंने ये सब कुछ सीख लिया। और गया क्या? कुछ भी नहीं। अगर हम कहते हैं कि यार हम और ऑपोजिट टू दैट, हम कैसी कैसी चीजों पे बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल देते हैं। आपका बेटा साइंस में अच्छा है, आपने उसको 11th-12th में साइंस दिला दी, या आपके बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स है, आपने उसको 11th-12th में साइंस दिला दी, ये सोच के कि ये IIT जाएगा, और फिर आपने उसकी कोचिंग फी लगवा दी। इस पूरे प्रोसेस में मोस्ट पेरेंट्स जनरली ज्यादा नहीं सोचते। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था। वहां पे ऐसी चीज थी कि मैंने भी खुद ज्यादा नहीं सोचा था इस बारे में, तो हम तीनों में से किसी ने नहीं सोचा था इस बारे में ज्यादा। एंड लेट मी टेल यू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट। आपकी जिंदगी के 2 साल बहुत रफ जाने वाले। आपकी जिंदगी के 2 साल आपको घिस के 6-6 घंटे कोचिंग में बितानी है, 8-8 घंटे स्कूल में बितानी है, सोशल लाइफ आप छोड़ ही दो, नींद आप छोड़ दो। बहुत बार बच्चे इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कोटा की हालत, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट्स क्या हैं। वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हो सकता है आपका दिन का 1 घंटा जो आप टीवी देखने में वेस्ट करते थे, आप उससे कुछ करते हो सकता है जो आप हफ्ते में एक बार पार्टी करने जाते थे, शायद कभी कभी वो ना जा पाओ। म्यूट कौन है? कमल अग्रवाल, जितू कमल अग्रवाल, हाँ थैंक यू। अब हो सकता है आपकी वो एक पार्टी में सो जाए, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट इसके अपसाइड्स मैसिव, कंप्लीटली मैसिव। मैंने जब पहली बार अपने एक पहला when I put out the first piece of content I made, which was essentially me trying to edit videos. मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता था। वहां पे I never thought कि उसके 1 साल बाद I would be doing podcasting, talking to people for more than 2 to 3 hours. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि I would be doing something like let's just say writing or research or video production. Or let me tell you, मेरी जो as I said, I'm working with a brand right now where I need to create YouTube videos for them. And वहाँ पे I just need to shoot the video for them. वो मुझे script भेजते हैं, I'll shoot the video, I'll edit the video, I'll send it over to them, which is हफ्ते की 2 videos. And वहाँ पे जो प्राइस में एक वीडियो का चार्ज कर रहा हूँ, that is more than my first month of internship का entire salary. मेरी first month of internship का, जिसमें where I worked 4 to 6 hours a day for 30 days, that was 3,000 एक महीने का. And आज I'm making more money than that just by making one video. The only reason that I'm doing that is because I knew कि stakes कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाने वाला अगर नहीं हुआ तो. लेकिन अगर हो गया तो बहुत स्कोप है, आसमान फाड़ के ऊपर जाओगे अगर हो गया तो. I know many talented people out here. I don't know if he's here, but shout out to I'm forgetting the name. यार shit. क्या हुआ? Wow. Sorry. I just lost my bit there. I'm जैसे ही मेरा नाम याद आता है मैं बोलता हूँ. अरे हाँ, shout out to यशवंत अंकल, shout out to Rotarian यशवंत महेश्वरी. मेरे मुंह से एकदम नाम ही स्लिप हो रहा था. He is a great singer. आप सब जानते हैं, जो भी रोटरी में है वो सब जानते हैं. I'm not sure if he's here,
but I saw Ankita auntie, so like if you're here, just tell him that I admire his singing a lot. And man, whenever I meet him, I just tell him कि uncle, you should start putting your stuff out on the internet. क्योंकि मतलब मैं उनको जानता हूँ कि वो 6 से 7 महीने से ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर से वो गाना गाते हैं, क्योंकि जब भी वो गाना गाते हैं, मतलब जब भी उनसे बात होती है, वो गाना गाने के बारे में ही बात करते हैं. तो मुझे पता है कि दैट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट ही डज कभी कभी फॉर फन, एंड इवन दैट इज if that is something that you do kabhi kabhi for fun, you should put it on the internet. But the case with him is that वो इतना अच्छा करते हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, there is a serious chance that he can actually make it on the internet. There is a big scope of entertainment creators जहाँ पे वो अपनी जगह बना सकते हैं. तो हम सबके अंदर एक साइड है जो कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, राइटिंग के थ्रू, गाना गाने के थ्रू, डांस करने के थ्रू, बोलने के थ्रू. हमें बस अपने आप को इस बात से दूर रख, इस कॉन्सेप्ट को कि कोई भी चीज सबके लिए नहीं होती, उसको अपने दिमाग से हटाना होगा और इंटरनेट पे आना होगा. बाबा ये तो शायरी हो गई, बट यही चीज है यार. that's how it works. So हमने इसी के साथ सेकंड मिथ कवर कर लिया. Does anyone have any questions for me? Does anyone have any doubts in this part? Okay, so Tell us how can we create it? Are you gonna cover that thing also? I'm gonna come to that. I don't think the process of creation is in that, but you'll know in the coming topics. You'll know how you can, this is not a workshop for creating content as much as it is for why you should do it. But if you have a question, we'll answer it in the end. So myth number 3 is that it is not a real job. It is not a real job. That's what I get told all the time. अगर आप किसी को जाके आप बताओ कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको सबसे पहले सबसे पहले जवाब क्या मिलता है? अच्छा, लेकिन करते क्या हो? अच्छा, असली काम क्या करोगे? जब मैं घर वालों से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मम्मी देखिए, मेरी सैलरी इतनी हो गई, मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, तो वो सब मुझसे क्या पूछते हैं? अच्छा, लेकिन तुम्हें करना क्या है? अरे यही तो करना है यार, यही तो करना है. ऐसे तो क्या ये असली जॉब नहीं है? क्या आपको लगता है ऐसी असली जॉब नहीं है? बट लेट मी टेल यू हाउ इट इज. सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लिमिटेड टू यू बीइंग अ क्रिएटर. इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि आप कुछ असली काम तभी कर रहे हो जब आप एक कंपनी के सीईओ हो. ऐसा तो नहीं होता. किसी आईटी कंपनी में सीईओ के अलावा भी लोग होते हैं जो कि असली काम कर रहे होते हैं, असली पैसे कमा रहे होते हैं. Am I right? तो वैसे ही एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के साथ सिर्फ वो ही अटैच नहीं होता. There is a lot of people working with him, and again corporates भी यार, there are corporates, there are brands who are looking for people to make content for them. Zomato के बारे में हम सब जानते हैं. Zomato की नोटिफिकेशंस जो होती हैं वो एक कॉपीराइटर लिखता है, एंड कॉपीराइटिंग एसेंशियली इज अ पार्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी स्पेस. जैसे एक इंजीनियर का स्पेस आईटी सेक्टर में होता है, एक कॉपीराइटर का स्पेस कंटेंट सेक्टर में होता है. जो एड्स आप देखते हैं यूट्यूब पे, उन एड्स को किसी ने शूट किया है, उन एड्स को किसी ने एडिट किया है, उन एड्स को किसी ने स्क्रिप्ट किया है. ऑल ऑफ दैट इज कंटेंट. all of that is a real job done by real people. Again, मैं वापस आता हूँ एक YouTube वाले एग्जाम्पल. लेट मी कम बैक टू इट. एक YouTube वीडियो में रिसर्च इज अ रियल जॉब, स्क्रिप्टिंग इज अ रियल जॉब, एडिटिंग, शूटिंग, होस्टिंग इज अ रियल जॉब. जब न्यूज एंकर्स वो करें तो वो एक असली जॉब होती है. जब वो एक कंटेंट क्रिएटर, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, जब कंटेंट क्रिएटर, जब न्यूज एंकर न्यूज पे आके कुछ बोले तो वो एक असली जॉब है. बट जब एक बंदा यूट्यूब वीडियो पे आके कुछ बोले तो वो असली जॉब नहीं है. ऐसा क्यों भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? राइट? तो उसके अलावा भी देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. मतलब एक मीम बनाने वाले की, मीम्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं.
हमने सबने अपने व्हाट्सएप पे देखे हैं मीम्स या मेमेज, जो हम कुछ लोग बोलते हैं उसको, कुछ फनी चीजें, कुछ विटी चीजें, कुछ फनी टेक्स्ट विद इमेजेस। एक 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 कॉर्पोरेट मीमर की, जो कि उस ब्रांड से रिलेटेड मीम्स बनाता है, 50,000 सैलरी होती है महीने की, और उसके लिए उसको डिग्री नहीं चाहिए। कोई मीम करना नहीं सिखा रहा, बैरियर टू एंट्री है ही नहीं। अगर आपको बस काम आता है, ये एक फायदा भी है, ये एक नुकसान भी है, क्योंकि कंटेंट इकोनॉमी जो है, क्रिएटर इकोनॉमी जो है, वो इतनी फॉर्मलाइज नहीं है जैसे बाकी सेक्टर्स है। उसका फायदा ये है कि आप इसमें घुस सकते हो अभी, और आप अच्छे हो सकते हो बाय द टाइम एवरीवन इज गेटिंग इनटू इट, बाय द टाइम इस पे एक बैरियर टू एंट्री आ जाएगा, तब तक आप इस सेक्टर में ऑलरेडी होगे। अब इस सेक्टर में ऑलरेडी होगे, आपके पास बैरियर टू इंप्रूवमेंट होगा। एंड इसका नुकसान ये है कि हमें बस पता ही नहीं चलता इसके बारे में। हम सबको इंजीनियरिंग के बारे में पता है, क्यों? क्योंकि वो काफी डिफाइंड है, वहां पे सारी चीजें अच्छे से क्लियरली आपको आपके सामने लाके रख दी जाती है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते। कंटेंट में ऐसा नहीं है, आपके पास खुली छूट है, खुला मैदान है, जो करना है करो, और अगर अच्छे हुए तो वैसे कमाओगे। that is why it is actually a real job now। सिर्फ जॉब नहीं, बिजनेस। जी हाँ, इससे बिजनेसेस खड़े होते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर एक बिजनेसमैन भी होता है, एक बिजनेस पर्सन भी होता है। आपको लगेगा क्यों है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बिजनेस में तो हमारे पास सारा सप्लाई डिमांड और प्रोडक्ट्स और इन सब का होता है। बिजनेस एक बंदा सिर्फ जो इंटरनेट पे आके बातें बोल रहा है, वो बिजनेस कैसे चला सकता है? वो बातें बिजनेस कैसे हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक कंटेंट पीस जो होता है, वो अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो वो अपने आप में एक प्रोडक्ट की तरह है। जैसे कि एक मैं कपड़े बेचने वाले खानदान से आता हूँ, तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, तो वो कपड़ा फार्म से निकला है, उस कपड़े को बुना गया है, उस कपड़े उसको, जो सूती कपड़ा है उसको बुना गया है, उसको फिर डाइंग के थ्रू लेके गए हैं, उसको पैकेज किया गया और फिर वो आके दुकान पर रखा है। वैसे ही एक वीडियो भी पहले रिसर्च में जाती है, स्क्रिप्ट होती है, शूट होती है, एडिट होती है, अपलोड होती है, फिर आपके सामने आती है। दैट उस पे भी सारे एफर्ट्स जितने एक फिजिकल प्रोडक्ट पे लगते हैं, बहुत हद तक एक डिजिटल प्रोडक्ट पे भी लग सकते हैं। सिर्फ क्योंकि आप उसको अपने इन हाथों से छू नहीं सकते, आप उसको सीरियसली नहीं लेते, आप उसको। और मैं कहूँगा ये कितना पिछड़ा तरीका है सोचने का। अगर हम आज देखें तो कैसी कैसी चीजें कितने कितने में बिक रही हैं। अगर आप में से कोई भी NFT के बारे में जानता है, तो अगर मतलब मैं आपको कहूंगा कि आप जाके सर्च करें, तो वो हमारे आज का टॉपिक नहीं है, बट आप NFT के बारे में जाके सर्च करें, आपको पता चलेगा कि लोग किस किस चीजों के लिए कैसे कितने कितने पैसे दे रहे हैं। हमेशा सी द थिंग इज दैट द एंड गोल इज ऑलवेज टू प्रोवाइड वैल्यू। कल को अगर मैंने कुछ ऐसा दिया जिससे आपकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर हुआ, एंड वो वैल्यू सिर्फ इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए कंटेंट में भी स्टार्ट में किसी ने आंसर दिया था कि एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स वैल्यू इज कंटेंट। नहीं, उसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूँ। सी जब कोई कंटेंट आपके पास आता है, तो आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है एक तरह की, और वो इंफॉर्मेशन या तो वैल्यू एडिंग हो सकती है, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो गया, आप बेहतर इंसान बन गए उसको सुन के, या फिर आपके कोई इमोशंस ट्रिगर हो गए, आपको हंसी आ गई, आपको गुस्सा आ गया, आपको सैडनेस आ गई, आपको कुछ भी, आपको खुशी, आपको हंसी, कुछ ये सारे इमोशंस अगर ट्रिगर कर दिए, दैट तो आप उसके लिए पैसे देने को तैयार हो। दैट इज हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स। हम कपड़े भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको वो पहन के अच्छा लगता है, हम उसको पहन के अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम कंटेंट भी इसलिए देखते हैं ताकि हम उसको देख के खुश महसूस कर सकें, किस तरह के इमोशंस अपने अंदर फील करना है। और इसीलिए वो एक प्रोडक्ट है आपके लिए भी और बनाने वाले के लिए। और इसीलिए इसके आगे नाउ हम वापस आते हैं बिजनेस एस्पेक्ट पे। तो पहले क्या, तो अगेन एज आई सेड, जो न्यूज वाले होते हैं, जो मूवीज वाले होते हैं, वो तो भाई पैसा कमा लेते हैं। उन्होंने तो थिएटर में पिक्चर रिलीज कर दी, अब जाके देख लो तुम, 250 रुपए की टिकट खरीद के। पर सिद्धांश
हमने, हमारे पास तो लोग देख, हमारे तो देखने वाले ही बहुत कम है। हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं? हम, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं कि पिक्चर मैं अपनी बिजनेस पे लगाऊं, या मैं अपना नेटफ्लिक्स पे अपना शो तो डाल नहीं सकता। थैंकफुली इस क्रिएटर इकोनॉमी के साथ देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे लोग, आप अपनी ऑडियंस से ही अपने आप को फंड करवा सकते हैं। 3-4 का मैं नाम लेने वाला हूं। ग्राफी, टैग मैंगो, गमरोड, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। बट ग्राफी क्या है? ग्राफी एक अन अकेडमी की डॉटर कंपनी है। अन अकेडमी क्या करता है? वो आपके लिए टीचर्स लेके आता है, आपको ऑनलाइन क्लास में बैठाता है, कहता है ये रहा टीचर, ये रहा स्टूडेंट, स्टूडेंट पैसे दो, हम टीचर को पैसे देंगे और आप पढ़ा दो। ग्राफी इस चीज को डेमोक्रेटाइज करता है, इस चीज को सबके हाथ में रखता है। आज हम ये सेशन जूम पे होल्ड कर रहे हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिएटर्स ऐसे ही सेशंस ग्राफी पे होल्ड करते हैं और उसके आगे एक पे वॉल लगा देते हैं। मेरे पास 1000 लोग हैं देखने वाले, मैं उन 1000 लोगों को कहूंगा कि यार देखो, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, कुछ ऐसा को कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छा कुछ ऐड करेगा, लेकिन मुझे उसके लिए 100 रुपए चाहिए हर इंसान से। तो एक लाइव क्लास का उन 1000 लोगों में से जैसे 10 लोग भी आए तो 1000 रुपए बन गए। और ये चीज ग्राफी में लाइव हो सकती है। यही चीज गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपको ये सब बताया। अब कल को इस सारे कंटेंट को मैंने रीपर्पस करके इसको एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में एक ई बुक बना दी। मैंने सारे चैप्टर्स डिवाइड कर दिए और एक ई बुक बना दी टेक्सचुअल फॉर्मेट में। अब उस ई बुक की पीडीएफ को मैं गमरोड पे डाल सकता हूँ और उस गमरोड का लिंक शेयर करके मैं अपनी ऑडियंस से कह सकता हूँ, ये लो गमरोड का लिंक, इस पे जाओ, इसका ये स्टार्टिंग प्राइस है मेरी मेरी बुक का, कुछ $1, $2, $5, और इसको जैसे ही तुम पैसे दोगे, अपना ईमेल डालोगे, तुम्हारे इनबॉक्स में आ जाएगी। दिस इज हाउ दैट वर्क्स। मैंने पैसे बना लिए। मैंने एक बार वो बनाया, एक बार टाइम लगाया उसको बनाने में, और मेरे 1000 लोगों की ऑडियंस में अगर उसमें 100 लोगों ने उसको खरीदा तो 10,000 रुपये बन गए। अगर $1 का है, जैसे से $1 का है, $100 बन गए, 6,000 रुपये। और ये चीज कितनी भी बार बेची जा सकती है। मेरे ट्विटर पे एक बंदा है ईस्लो करके, वो टेम्पलेट बनाता है। टेम्पलेट एक ऐप है नोशन, जो कि एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, जैसे हमारी नोट्स की ऐप होती है, नोशन उसी तरह की ऐप है, बट नोशन में बहुत सारे और फीचर्स भी होते हैं। वो बंदा उस ऐप के लिए टेम्पलेट्स बनाता है। मेरी एज का है, 19 साल का। सिर्फ ट्विटर, अपनी ट्विटर की फॉलोइंग के थ्रू और नोशन के स्किल्स के थ्रू पिछले 6 महीने में $10,000 कमा चुका है। क्योंकि उसको कंटेंट बनाना आता था, क्योंकि उसने बहुत सारा कंटेंट फ्री में दिया, एक ऑडियंस बिल्ड करी और फिर उसका एक बिजनेस बनाया। टैग मैंगो भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर मैं यूट्यूब पे क्रिएटर हूँ, मैं अपने अपने सब्सक्राइबर्स को कहता हूँ कि यार तुम लोग मेरी यूट्यूब की वीडियोस तो फ्री में देखते हो, पर ये एक सर्टेन सेक्शन ऑफ वीडियोस है जो कि मैं तुम्हें हर हफ्ते ला के दूंगा, बट ये पेड लोगों के, बट ये बस के लिए पे करना पड़ेगा। ये चीज मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाऊंगा जो मेरे लॉयल फॉलोअर्स हैं। ये लो मेरे टैग मैंगो का लिंक, 100 रुपये सब्सक्रिप्शन महीने का या 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन महीने का ले लो मुझसे, और हर महीने तुम्हारे इनबॉक्स में तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगा। That is how these things work. Now, let's just say you have an audience of 10,000. उसमें से 1000 लोग भी अगर तुम्हारे ट्रू फैंस हैं ना, तो वो तुम्हें हर बार पैसे देंगे। एंड अगेन, इसमें मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत कम होने वाली है, क्योंकि उसके साथ अपने चैलेंजेस आते हैं। अगर आप पे वॉल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने कंटेंट में, तो आपको अपना कंटेंट और बेहतर फ्री वाला ऑलरेडी बनाना पड़ेगा ताकि और लोग फ्री में देखें। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। मेहनत कहीं कम नहीं है, ये चीज लिख के ले लो जो भी यहाँ बैठा है, कम मेहनत नहीं लगने वाली। दिस इज अ थिंग दैट इज गोइंग टू रिक्वायर योर टाइम, एफर्ट एंड योर स्वेट। बट अगर अच्छे से किया तो देयर इज ऑल दीज ऑप्शन ओपन फॉर यू। नाउ मेरे पास अभी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है कि मुझे किसी चीज के लिए पे करे, बट आई हैव माई स्किल्स। मैं उन स्किल्स से पैसे कमाता हूँ। स्किल्स एसेंशियली आर द वे इन विच यू हेल्प अदर पीपल अर्न मोर मनी। अगर मैं किसी को 4 लाख रुपए कमाने में हेल्प कर रहा हूँ महीने के, तो सर्टेनली मुझे 4,000 रुपए दे सकता है। That's simple math, right? So that's how you sell things. So I think now we should be clear on how this is actually a real job.
टेल मी, क्या अगर अगर अगली बार आपसे आके कोई लड़का बोलेगा या लड़की बोलेगी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो क्या आप उससे पूछेंगे कि बेटा एक्चुअली क्या करते हो? No, not at all. Actually, the better question to ask would be, तुम क्या करना चाहते हो? जब आप किसी को ऐसे बोलते हो ना कि बेटा एक्चुअली क्या करते हो, तो वो एक्चुअली डिमोटिवेटिंग होता है, वो आपको वो पुट ऑफ कर देता है सामने वाले। यही अगर आप उससे पूछो बेटा करना क्या चाहते हो, तो शायद वो आपको बताए कि मेरा प्लान आंटी स्क्रिप्टिंग में जाना है, मेरा प्लान आंटी वीडियो प्रोडक्शन में जाना है। कि ये सब चीजें एक्चुअल स्किल्स हैं, ये सब चीजें एक्चुअल जॉब्स हैं जो कि लोग करते हैं। लेट मी एड्रेस द फोर्थ मिथ दैट देयर इज। हम जो मैंने सुना है बहुत लोगों से इज दैट अगर आप इस फील्ड में पैसे कमाना चालू कर भी देते हैं तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। सब हर कोई मुझसे ये पूछता है कि सिद्धांश, मतलब इवन इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, कि कब तक करोगे, कब तक तुम्हारे पास कब तक वीडियोस बनाओगे, ऐसा क्या होगा जब तुम्हें क्या कहते हैं 30 की उम्र में घर कैसे चलाओगे, गाड़ी कैसे खरीदोगे, बच्चों को कैसे संभालोगे। ये लोगों को लगता है कि अगर मैं आज पैसे कमा रहा हूँ इस चीज से, 10 साल बाद नहीं कमा पाऊंगा। चाहे बहुत लोग, मतलब अगर मैं अपने घर वालों को ऐसे लोगों का भी एग्जाम्पल देता हूँ जो इस चीज में अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैंने वेदांत का एग्जाम्पल दिया, वो आपको पहले दिया था, तो मुझसे पूछेंगे कितने साल का है वो, क्या कर रहा है। और अगर मैं उनको बताऊँ कि 24-25 साल का है, तो मुझसे बोलेंगे कि 10 साल बाद पूछना क्या कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि इंसान इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, इसको सस्टेनेबल एक सस्टेनेबल करियर नहीं बना सकता। नाउ आई आई एम टू आई विल एडमिट इट, आई एम टू यंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट, इस चीज पे ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बट आई अंडरस्टैंड दैट योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मैं लंबे टाइम तक नहीं कर सकता, जो कि मुझे लंबे टाइम तक पैसे नहीं ला के दे सकती, कल कल को वो चीज खत्म हो जाएगी, तो क्या करते हो, तो फिर मैं सिर्फ उसका उस टाइम पे मजे ले रहा हूँ, जैसे मुझे खत्म होगी पैसे आने बंद हो जाएंगे। एक गुड एग्जांपल टू दिस वुड बी, बहुत हद तक कोविड कोविड में जो बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए थे, स्टार्टअप्स आए थे, जो कि लॉकडाउन में भी आपको डिलीवरी दे रहे थे, राइट? कि लॉकडाउन है पर हमारे बंदे हैं वो आपको डिलीवरी दे देंगे। हमारे शहर में भी थे, पर क्या होगा जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो बिजनेस बंद, लोग वापस से खुद सामान लेके आने लगेंगे, जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन कुछ ऐसा टाइप का है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपका क्वेश्चन काफी वैलिड है, बट लेट मी ट्राई आंसर इट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, ये कंटेंट क्रिएटर एक बिजनेसमैन होता है, मैंने उसको पहले आपको पहले ही बताया था। और जो लोग एक बिजनेस चलाते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर चलाते हैं ना, उनको अपने काम से प्यार होता है। वो नहीं चाहते कि वो आज से 5 से 10 साल बाद अपने घर में पड़े रहें, उनके पैसे आते रहे। नहीं, उनको 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 जेन्युइनली ये काम करने में मजा आता है। तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनको एक रात ना सोना पड़े, या फिर उनको कोई या फिर उनको दिन भर काम करना पड़े एक वीडियो निकालने के लिए, क्योंकि उनको वो पसंद है। दैट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। उनको वो गेम खेलने में मजा आता है। और फ्रैंकली आप इस फील्ड में तभी टिक सकते हो जब आपको ये गेम खेलने में मजा आता है। अगर आपको सिर्फ लगता है कि मैं इससे पैसे बना लूंगा, तो वो चीज थिंकिंग गलत है, आप नहीं कर पाओगे। आपको जेन्युइनली ये गेम में मजा आना पड़ेगा ना। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक कंटेंट क्रिएटर एक बिजनेसमैन होता है। एक बिजनेसमैन क्या अपने बच्चे पैदा होने के बाद काम करना छोड़ देता है, या शादी होने के बाद काम करना छोड़ देता है? ऐसा तो नहीं होता। वो स्टार्ट करता है अकेले, अपने लिए कुछ बिल्ड करता है, पैसे कमाता है, फिर धीरे 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 बाय द एज जहाँ पे उसको एक फैमिली लाइफ बितानी होती है, तब तक या तो वो अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अपना पैसा इतने अच्छे से हैंडल करता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अब मुझे पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के बहुत तरीके हैं, वो भी एक अलग दिन का टॉपिक है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो फाइनेंशियली ऑलरेडी इतने फ्री हो जाते हैं बाय द टाइम दे आर 30 कि उनको पैसे के लिए काम करना ही नहीं, उनका पैसा उनके लिए पैसे बना रहा है। और व्हाट दे डू इज दैट
दे बिल्ड अ बिजनेस बिग इनफ कि उनको अपना काम डेलीगेट कर देना। लेट्स जस्ट से कल को मैं 30 साल का हो गया, मेरे पास एक बीवी 2 बच्चे हैं। अब इनके लिए, अब इनको टाइम देने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं दिन में 16 घंटे काम नहीं कर सकता, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो बाय दैट टाइम आई शुड बी डिसाइडिंग कि मुझे या तो अपने फाइनेंशियल्स को इतने अच्छे से सिक्योर कर लेना है कि मेरा पैसा मेरे लिए पैसे बनाए, जो कि वेरी पॉसिबल बाय द एज ऑफ 25। अगेन अलग 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 दिन की अलग डिस्कशन। बट और या फिर मुझे अपना काम डेलीगेट करना है, मुझे टीम बनानी है, मुझे एक बिजनेस, इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह रन करना है। मेरे पापा एक बिजनेस चलाते हैं, वो अपना सारा काम खुद नहीं करते, उनके पास लोग हैं उनका काम करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। एसेंशियली एक कंटेंट क्रिएटर जो कि बिजनेसमैन बना है, अगर आपने इस गेम को सही से खेला तो आप बिजनेसमैन बन के ही एंड अप करोगे। एक बिजनेस पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर बन के ही खत्म होगी ये चीज। और वहां पे अगर आपने अपना गेम सही से खेला है तो आप अपनी टीम आराम से बना सकते हो, और टीम आपकी होपफुली इतनी अच्छी होगी कि वो आपको आपके फैमिली के लिए टाइम देने देगी। और अगेन अगेन एक एक फ्रेज है, एक कोट है, बिल्ड वंस सेल ट्वाइस। एक चीज बनाओ उसको 2 बार बेचो, एक कोर्स बनाओ उसके 100 कोर्स बेचो, 100 चीजें बेचो, हजार हजार बेचो, जितने बेच सकते हो बेचो, बनाना एक बार। दैट्स हाउ इट सस्टेन्स। एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस तभी चलता है जब उसके पास एक अच्छी टीम हो, जहाँ पे हर कोई, अगर एक बिजनेस बहुत बड़ा है और सब कुछ एक बंदा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो चीज नहीं हो पाएगी कभी। और दूसरी बात है कि लोग, एंटरप्रेन्योर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम से प्यार होता है, वो अपने वीकेंड का वेट नहीं करते, उनको अपने गेम में मजा आ रही होती है। ऐसा नहीं कि वो थक नहीं रहे होते, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे होते, पर वो रिस्क उनका होता है, वो काम उनका होता है। और अगर आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर तो ऐसे क्या चीज सस्टेनेबल है? क्या क्या गारंटी है कि कल को एक इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी? क्या गारंटी है कि कल को एक डॉक्टर का क्लिनिक बन रही? कंटेंट में अगर आपने खुद चूज किया है तो फायदा एटलीस्ट ये है कि वो रिस्क आपका है, किसी और का रिस्क नहीं ले रहे, अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे हो। सो दैट वाज द that was the fourth myth that I wanted to address. Now, the fifth and final myth that we're going to come to is that the market is saturated. ये जनरली ऐसे लोगों की तरफ से आता है जो कि थोड़ा बहुत सुन चुके होते हैं कंटेंट के बारे में। बहुत बार वो ऐसे बोलते हैं कि हर कोई तो यूट्यूबर, मेरे पापा की लाइन है, हर कोई यूट्यूबिंग कर रहा है आजकल, ये मेरे पापा की लाइन है। और सही बात है, हर कोई काम कर रहा है, तुम्हें कोई क्यों ही देखेगा? नाउ लेट मी टेल यू दैट बाय स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, डेटा इज दैट 50 करोड़ लोग इस देश में अभी भी इंटरनेट पे नहीं है, और अगले 10 साल में वो इंटरनेट पे आने वाले हैं। तो एसेंशियली अगर तुम आज कंटेंट बना रहे हो, तुम उन 50 करोड़ लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो। और दूसरी बात, लोग तुम्हें इसलिए देखेंगे क्योंकि तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हें कुछ वैल्यू या इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर तुम अपने गेम में अच्छे हो, देयर इज एन ऑडियंस आउट देयर फॉर यू। और लोग तुम्हें क्यों देखेंगे, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट योर पेरेंट्स शुड बी आस्किंग यू, that is a question that you should be asking yourself when you're stepping into this world of content. Again, मैंने क्या कहा, इस गेम में ऐसा नहीं कि मेहनत कम है, बट अगर ढंग से करी तो तुम्हें लोग क्यों ही देखेंगे। इट्स नॉट एन लाइक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो आप कंटेंट क्रिएट करने से रोकेगा। दैट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट दैट शुड मोटिवेट यू टू थिंक अबाउट इट, टू नो, टू बिल्ड अ यूएसपी। क्योंकि हमको क्या लगता है, अगर मतलब इंसान अब क्या ही नया म्यूजिक बन जाएगा, और हर दिन नया म्यूजिक आ जाता है, क्या ही नई मूवीज बन जाएंगी, आ जाती है, क्या ही नए बिजनेसमैन बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि लोग अब नए यूट्यूबर्स को क्यों ही देखेंगे, 1 साल रुक जाओ, नए यूट्यूबर्स नहीं आएंगे क्या? आएंगे, नए कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे। आपको पता चलेगा कि अगर आप इस गेम में हो तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। एंड अगेन, जरूरी नहीं कि आप उसमें से एक हो, आपको पैसे कमाने के लिए लोगों की बहुत कम जरूरत है। ये एक फील्ड अपने आप में ही एग्जिस्ट करती है, ये एक इकोनॉमी है अपने आप में।
अगर आप इस इकोनॉमी के स्किल्स सीख गए ना, तो पॉपुलैरिटी की तो बहुत लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पैसे एक जॉब से भी कमा सकते हो। और जिस हिसाब से अगेन एज आई सेड, जिस हिसाब से इस पूरे फील्ड में लोग पैसा लिटरली बहा रहे हैं, दो जगह है, कंटेंट और फिनटेक, कंटेंट और टेक्नोलॉजी, जहां पे आज पैसा बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है। एक टेक स्टार्टअप चला एक टेक स्टार्टअप चलाने वाला बंदा बहुत ज्यादा फंडिंग रेस करता है, एक कंटेंट बनाने वाला बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि ये दो चीजें आने वाली दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नवल रविकांत एक फेमस फिलोसोफर है ट्विटर पे, इज एक्चुअली द फाउंडर of this company called AngelList, which is basically a venture capital. वो बंदा ट्विटर, उबर ऐसी चीजों में जहाँ पे जो कि आज सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका अर्ली इन्वेस्टर है। वो कहता है कि अगर आने वाली दुनिया में तुम्हें कुछ अच्छा करना, अगर आने वाली दुनिया में तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम्हें या तो कंटेंट या तो कोड, इन दोनों में से कुछ सीखना। कोड इज द लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स. Content is the language in which we communicate with the world. Content is the language in which we communicate with each other. एक मैसेज पुट अक्रॉस करने के लिए मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं एक ऐप बना दूं, या तो मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है और फिर आप उसको सेंड कर दो, फिर आपको एक एक करके आगे लेके जाए आपके गोल पे, या फिर मैं एक कंटेंट का पीस बना के आपको तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। दैट इज हाउ बिग द कंटेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी। और सैचुरेशन की अगर हमें बात करनी है ना, तो हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की सैचुरेशन की बात नहीं करते हैं। 40 लाख 50 लाख मतलब 20 लाख बच्चे बैठते हैं एक आईआईटी के एग्जाम में, 20,000 सेलेक्ट होते हैं। वहां कोई क्यों नहीं बोलता कि आजकल हर कोई आईआईटी कर रहा है? वहां कोई क्यों नहीं बोलता कि यार हर कोई मेडिकल कर रहा है? मैं 4 लोग दिखा सकता हूँ जो आईआईटी कर रहे हैं मेरे सामने, जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। कंटेंट सीरियसली बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो शायद हमें ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। शायद हमें जब हम ऐसी चीजों के बारे में एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास करते हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए कि शायद हम इसमें यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट पॉइंट, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं, कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो ना, स्पेशली इन योर अर्ली ईयर्स यार, अगर एक कॉलेज स्टूडेंट अपना टाइम पार्टीज को और फालतू के कॉलेज असाइनमेंट्स को, क्योंकि हर कोई मान सकता है कि कॉलेज उतना हार्ड नहीं होता है जितना बहुत लोग उसको दिखाते हैं। उतना हार्ड नहीं होता, मैं जानता हूँ, मैंने कर रखा है, मतलब मैं कर रहा हूँ, सॉरी। बट अगर हम वो टाइम कहीं और लगाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये सोचने की कि यार हम वायरल नहीं होंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये सब है, सबके लिए नहीं होता। यहाँ पे ना कुछ असली असली काम नहीं हो रहा है। अगर थोड़े बहुत पैसे कमा भी लिए तो चलाऊंगा कैसे? और यार सबको तो देखते हैं यार, सब इतने सारे लोग तो यूट्यूबर है, मुझे कौन क्यों ही देखेगा? ये 4-5 चीजें अपने दिमाग से निकाल के अगर हम इसको एक्चुअली एक्सप्लोर करें, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है।